Hi my dear students, today's topic is problems on reflecting plane mirror. प्लेन मिरर के ऊपर प्रॉब्लम्स ले रहा हूं बेटा आज के दिन. नाउ सी what should be the angle between two plane mirrors so that whatever be the angle of incidence, the incident ray and reflected ray from two mirrors be parallel to each other. ऐसा बोल के बता. That means he is asking angle between the two mirrors. Angle between the two mirrors. Let us take the angle between the two mirrors is theta. मैंने angle between the two mirrors को theta बोल के लिया है. Now for this mirror I drawn here one normal. For this mirror, I drawn here one normal. This is N1 and this is N2. Okay? But a light is allowed to fall onto the first reflecting surface. After that, it comes out. After that, it comes out. Okay? ऐसा आकर ऐसे जाएगा लाइट. लेट अस टेक दिस इज M1 एंड दिस इज M2. ओके, लेट अस टेक दिस एंगल इज, अगर मैंने इसको इंसिडेंट एंगल समझा, ये θ1, एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो सेम θ1. अगर इसके लिए ये θ2 रहा तो ये θ2 रहेगा. बेटा अगर ये थीटा रहा तो यहां का एंगल भी थीटा ही रहेगा. लेट अस टेक सम ऑफ दिस एंगल. θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. 2θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. θ1 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. Similarly, angle between these two is θ2 plus θ2 is equal to 90 degrees. 2θ2 is equal to 90. θ2 is equal to 90 by 2. That is equal to 45. Okay ना? θ2 is equal to 45 degrees. देखो बेटा, अगर ये ट्रायंगल दिए, sum of the angles in a triangle is equal to 180 degrees. That means θ1 plus θ2 plus θ is equal to 180 degrees. We know θ1 45 degrees, θ2 45 degrees, θ I don't know. That is angle between the two mirrors. θ is equal to 180 minus 90. θ is equal to 90 degrees. That means angle between the two mirrors is equal to 90 degrees. Okay? But one more question. When a plane mirror is placed horizontally on a level ground at a distance of 60 meter from the foot of the tower. समझो यहां पर एक टावर है, ये टावर से थोड़ी दूर में एक प्लेन मिरर रखा गया है. When a plane mirror is placed horizontally on a level ground at a distance of 60 meter from the foot of the tower. देखो यहां से लेकर यहां तक 60 मीटर है. 60 मीटर. फुट ऑफ द टावर इज, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर टू दैट मिरर इज 60 मीटर. एंड इट्स इमेज इन द मिरर सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज एट द कॉर्नर ऑफ द मिरर. कॉर्नर बोले तो यहां, कॉर्नर ऑफ द मिरर नियर टू द फुट ऑफ द टावर. कॉर्नर बोले तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बट ऐसा बोला नियर टू द एंड, नियर टू द फुट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज. देखो बेटा, अगर मैंने देखा ये मिरर में देखा तो मुझे इमेज दिखाई देगा. ये मिरर के अंदर मुझे इमेज दिखाई देगा. ओके ना? तो इन दोनों के बीच में एंगल्स कितना बताया उसने? 90 डिग्रीज बोल के बताया. 90 डिग्रीज रहेगा बोल के बताया, यहां से लेकर यहां तक. ओके ना?
बेटा ये 90 डिग्रीज रहा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये 45 डिग्रीज है और ये 45 डिग्रीज है, और क्वेश्चन में दिया गया है मिरर एंड फुट ऑफ द टावर डिस्टेंस इज 60, ना हाइट ऑफ द मिरर इज। देखो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू h बाई डी। थीटा अगर 45 डिग्रीज है, tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू h बाई 60, h is equal to 60 meter. The height of the mirror is 60 meter. Next question. A watch shows the time 3:20. What will be the time appears when seen through a plane mirror? ऐसा बोल के बताया। बेटा ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा। लेट अस टेक 12, घड़ी में 12 आवर्स बोल के लिखा होगा। You write here 12 can be written as 11, 59, 60. This is equal to this one. अब देखो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको यहां लिखो, 3, 25 एंड सब्सट्रैक्ट करो, 0, 6, 9 minus 5 is equal to 4, 5 minus 2 is equal to 3, 11 minus 3 is equal to 8, और ये 60 सेकेंड्स है, इसको ऐड किया तो 8.35, 60 मिनट्स यहां ऐड किया तो 1 मिनट बनेगा, तो तुम्हें मिरर में ये टाइम दिखाई देगा। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए कॉर्नर reflector as shown. The incident ray makes an angle 22 degrees with one of the mirror. At what angle theta does the ray emerges? देखो बेटा ये मिरर है, light is allowed to fall onto the mirror and after that it is reflected and allowed to fall onto the second mirror, after that it is reflected. He is asking what is the angle with reflected ray and mirror, ऐसा पूछ रहा है। बेटा एक बात बताओ, क्या ये नॉर्मल हो सकता है क्या? दिस इज नॉर्मल, यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री रहेगा एंगल, 90 डिग्री में से 22 निकाल देता हूं मैं, दैट इज 8, दिस इज 8, दिस एंगल इज 68 डिग्रीज। अज्यूम दैट दिस इज इंसिडेंट रे and this is incident angle. According to law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. इसलिए यहां 68 रहा तो यहां भी 68 रहेगा। बेटा let us take this angle is 22 degrees, क्योंकि 68 28 रहा तो 68 22 रहेगा। ये तो 90 डिग्रीज है, दिस इज 90 डिग्रीज। यहां एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। मैं क्या करता हूं, ये और ये ऐड कर लेता हूं, 90 22 2 11 1 1 2 8, यहां 7 रहेगा 6, दैट मीन्स दिस एंगल इज 68 डिग्रीज। ओके ना बेटा, ये 68 रहा तो ये कितना रहेगा, देखो 68 रहा तो 22 था, रिवर्स हुआ, 68 रहा तो ये कितना रहेगा, 22 रहेगा। ये 22 रहा तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड रे इज ऑल्सो मेक्स एन एंगल 22 डिग्रीज। ये 22 डिग्रीज रहा तो ये कितना रहेगा, 68 डिग्रीज रहेगा। तो आंसर कितना है, 68 डिग्रीज। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two mirrors are kept 60 degrees to each other and a body is placed at the middle and a body is placed at the middle, a body is placed at the middle, middle बोले तो यहां कहीं रखा है, and inclined at 60 degrees. The total number of images are formed, ऐसा बोल के बताया। बेटा मैं क्या करता हूं, इसको देखो, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस आई यूज फॉर्मूला m इज इक्वल टू 360 डिग्रीज बाय 60, दैट मीन्स m इज इक्वल टू
360 degrees divided by theta. To find out that whether that m is even or odd, then I use here m is equal to 360 by 60. 360 by 60 is nothing but 6. But m is equal to 6. If m is equal to 6, then you can keep that object any position. That means you can keep in the symmetrical position or asymmetrical position. You get the same answer. Number of images is equal to number of images is equal to n is equal to m minus 1. m is equal to 6 minus 1. m is equal to 5. इसको और एक मेथड में करता हूं. इसने बताया ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे मालूम हो रहा है ये सिमेट्रिकली रखा है. सिमेट्रिकली बोले तो क्या होता है मालूम? यहां से यहां 30 डिग्रीज, यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्रीज. ऑब्जेक्ट मेकिंग एन एंगल m1 30 डिग्रीज, ऑब्जेक्ट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्रीज विथ m2. देखो बेटा, क्रॉस मेथड से भी करता हूं मैं. क्रॉस मेथड बोलो तो यहां 30 डिग्रीज विथ m1, 30 डिग्रीज विथ m2, m1 m2. इंक्लाइंड एन एंगल 60 डिग्रीज. ये एंगल को ऐड करो 90 डिग्रीज आएगा. ये एंगल को ऐड करो 90 डिग्रीज आएगा. ओके, जब तक 180 आता है तब तक तुम ऐड करते जाओ. या सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज बोलो तो क्या है? 90 90 60 0 18 19 20 24. इसको ऐड करने के बाद 360 आता है क्या नहीं आता है चेक करो. अगर 360 आता है तो ओवरलैपिंग होगा, 360 नहीं आता है तो ओवरलैपिंग नहीं होगा. 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150. 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150. अगेन सी हियर 60 डिग्रीज. 150 प्लस 150 300 प्लस 60 360. 360 आया तो रुक जाना है, ओवरलैपिंग फॉर्म हो रहा है. हाउ मेनी इमेजेस आर देयर? 1 2 3 4 and this one is 5. ओवरलैपिंग है ना, ये ओवरलैपिंग इमेज फॉर्म. तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू, ऐसा ये मेथड से करो या ये मेथड से करो, आंसर एक ही आता है. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज गिवन ए मैन इज 80 सेंटीमीटर टॉल and his eyes 10 centimeter below the top of this head. In order to see this entire height right from the top to head, he uses a plane mirror kept at a distance of 1 meter from him. The minimum length of the plane mirror is, ऐसा बोल के क्वेश्चन बोला है. बेटा यहां पर एक प्लेन मिरर है and a person is stand in front of the plane mirror. Okay na? And he said that his height is 180 centimeter and his eyes are 10 centimeter below. His eyes are 10 centimeter below. 10 centimeter. ये 10 centimeter रहा तो यहां से यहां तक कितना रहेगा? 170 सेंटीमीटर रहेगा. तो टोटल हाइट आकर 180 सेंटीमीटर है. तो ये आकर मिरर में देख रहा है, इसको मिरर में देख रहा है. तो टू सी हिज फुल इमेज व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द मिरर? द लेंथ ऑफ द मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट, दैट इज इक्वल टू 180 by 2. 2 ones are 2 90s are. L is equal to 90 centimeter. Minimum length of that mirror is 90 centimeter. Okay. Now next question. A ray of light is incident on plane mirror at an angle 30 degrees. The deviation produced in the ray. Let us take, this is the plane mirror. But this is the normal. A light is allowed to incident onto the plane mirror by making an angle 30 degrees. Okay. Generally, this light has to go in this direction. But due to this plane mirror, a light is reflected back into the same medium. Angle made by the direction of incident ray, reflected ray
is called as angle of deviation. Beta, according to law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. That means अगर यहां 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही रहेगा. Now डेल्टा इज इक्वल टू, देखो डेल्टा प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू, देखो ये तो स्ट्रेट लाइन है, यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्रीज है. देन आई राइट हियर 180 डिग्रीज. डेल्टा प्लस 30 इज इक्वल 180 डिग्रीज. डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 30. डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 60. डेल्टा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. जनरली अगर तुम इसको आई बोले, इसको आर बोले तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180. डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आर. इफ आई इज इक्वल टू आर, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 दिया है तो 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 60. 180 minus 60 that is equal to 120. You can do this method or this method.